Today we will be continuing that series operation of thyristors. So we are continuing. So we were discussing case 4. Okay. So in case 4, if you remember, we have discussed, suppose we have two series connected thyristors, and if one thyristor is getting turned off sooner than another thyristor, then it will follow a path through dynamic equalizing circuit and static equalizing circuit. Because the thyristor is getting turned off, one thyristor is getting turned off. So now we need to find out the value of the capacitor. So now we are finding out the value of capacitor. There is a derivation. What should be the value of capacitor present in the dynamic equalizing circuit? Okay. So let us now find out. So continuation of case 4. Now we will be finding out the value of capacitance which we will be connecting in our dynamic equalizing circuit. Okay. So let us discuss the circuit diagram for calculation of capacitor. So here again we are taking two thyristors connected in series. Okay, now draw the diagram. So we have connected two series connected thyristors T1 and T2, and across each thyristor we are connecting one equalizing capacitor C having a value C. Okay, so we will be finding out what should be the value of C to be connected across each thyristor. Okay, so for this we need to know the characteristic. Okay, so y-axis, let us choose anode current. Ia means anode current. Anode current of both the thyristors T1 and T2. Okay, and x-axis I am choosing time. So it is anode current versus time. Okay, so pink one shows for T1, right? It is the characteristic for T1. That is turn off characteristic. This is turn off characteristic. You can write down below this characteristic, turn off characteristic for T1. Now for T2, okay, so green one shows for T2. T1 is shown with pink line and T2 is shown with this green line. Okay, so you can see over here that
T1 is getting turned off. This is turn off characteristic. Okay, so T1 is getting turned off at this particular moment, whereas T2 is getting turned off here. That means T1 is turning off sooner than T2, isn't it? So now what is the difference of current between them? So difference of current I can show with the help of shaded line. The area which we are getting under the shaded line, this yellow, this pink and green line, the shaded part shows area covered under this shows delta q. Delta q. Okay. Up to this is over now. Delta q is proportional to the difference of anode current multiplied with difference of time. Okay, and it is in the shaded portion shows delta q, the difference of charge stored between them. Okay, area covered shows this one. Okay, so here your T1 is getting turned off sooner than your T2. T2 थोड़ी देर बाद turn off हो रहा है. So T1 is getting turned on sooner. ठीक है, so now it is now out of the circuit. So reverse recovery current, I'm talking about reverse recovery current. So how the reverse recovery current will flow? It will follow a path. Reverse recovery current will follow a path like this through capacitor and then to the source. Okay, it cannot flow through T1 because T1 is getting turned off sooner, isn't it? Now we will be finding out the value of C to be connected so that C can withstand this condition where one thyristor is getting turned off sooner than another thyristor. Okay, so now derivation part is left. Show the red line. Okay, so let us assume V1. V1 means the voltage drop across first thyristor. Okay, voltage across the first thyristor or T1 you can say. Let us assume it is equal to VBM. We are assuming. Let us assume V1 is equal to the voltage across first thyristor T1. V1 is equal to voltage across first thyristor is V1 and we are assuming it to be VBM. Okay, and voltage across second thyristor V2. Voltage across second thyristor V2. V2 will be equal to, if we are assuming this, then V2 will be equal to VBM minus delta Q by C. So why I am writing? Because there is a difference of charge is delta Q between both T1 and T2. We have seen from the characteristic. So you know that V is equal to QC formula. All of you know, na? V is equal to delta Q into delta Q into C. Delta Q into C. So what will be our sorry, Q, Q by C. Delta Q formula is Q is equal to CV. Okay, so what will be voltage? Voltage difference will be equal to delta Q by C. So the difference of voltage is this one because of the shaded part. That shaded part shows the difference of charge
between T1 first thyristor and between T2, that is second thyristor. So that is why this we are, if V1 is VBM, then V2 should be VBM minus delta Q by C. Okay, right? Okay. This you can note. Now, if V1 and V2 are like this, so we can write down Vs. Vs is equal to, what is Vs then? Then Vs will be equal to V1 plus V2, isn't it? Vs means supply, V1 plus V2. So just put both these things, V1 plus V2. Okay, let me take this as first equation, this as second. So now substitute first and second in Vs equation. Vs is equal to V1 plus V2. Okay. Now substituting first and second in this Vs equation. Delta Q by C. Now from this we have to find out VBM, equation of VBM. VBM if you solve, it will be half on solving, huh? On solving you will get like this. So VBM we have already seen, VBM is, what is VBM? VBM is V1. VBM is V1 according to equation number 1. So now what will be our V2? V2 is, according to equation number 2, V2 is minus VBM minus delta Q by C. So you substitute this thing, make it equation number 3. So substitute 3 in this place, in place of VBM. So on solving you will get half like this. Okay, so take it equation number 4. Okay, so this is the case we are taking for the case when we are having two thyristor. Suppose instead of two thyristor, it's not necessary that we will be connecting only two thyristor. There can be many thyristor we will be requiring to be connected in series. So let us assume we have got n number of thyristors which we will be connecting in a form of a string in series. Okay, so now let us see what will happen if we are connecting n number of thyristors in series combination. Acha, one thing I forgot to show is that in the diagram which I have drawn just now, VS, I have shown. Na? So there you should show the polarity like this. That is why reverse recovery current will be flowing from this to this side. You just change the polarity. The bottom one will be positive and lower one will be, sorry, upper one will be negative, lower one will be positive. I forgot to show these polarities. You just show in your diagram. And this current, you just mentioned this current which was flowing like this you can name it as reverse recovery current. Reverse recovery current. Okay, because T1 was getting off, so instead of T1 it was flowing through the capacitor for first thyristor. Reverse recovery current, and see change give the polarity sign. Okay. Okay, now let us consider n number of thyristors which are connected in series, and now let us find out the capacitor value. Okay.
n can be any value, ठीक है. So let us assume this is n, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, like this. N can be any number. So here I am showing the polarity because this we are discussing for reverse recovery current. So Vs is shown with the polarity. You can see upper one is negative, lower one is positive. Okay, now across each capacitor, each thyristor will be connecting capacitor like this. अचानक से स्क्रीन रोटेट कर गया. देख पा रहे हो ना डायग्राम? वो छोटा हो गया डायग्राम. These are the shorted points. So in this case, we are assuming कि the like we were assuming in the previous case कि पहला thyristor जो है उसका turn off time कम है, तो ये जल्दी टर्न ऑफ हो जा रहा है, एंड जो रेस्ट है उसका टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा है. सो रिवर्स रिकवरी करंट कैसे फ्लो होगा? फर्स्ट नीचे से जा रहा है, ठीक है, इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस. सो फर्स्ट वन इज गेटिंग टर्न्ड ऑफ सूनर, सो इट विल फ्लो लाइक दिस. ठीक है, पहला वाला जो है वो जल्दी ऑफ हो जा रहा है, दैट इज वाई फर्स्ट वन इज गेटिंग टर्न्ड ऑफ सूनर on the basis of assumption. Okay, so instead of flowing through the first thyristor T1, it will be flowing through capacitor which was connected in the parallel with T1. Okay, so this is the way in which the current will be flowing as we discussed for the previous case. Okay, now we will be focusing on how to find out the capacitor value. So if now as we have discussed, ये diagram हो गया? Is it over? ये जो करंट है ना रेड में मैंने दिखाया, ये रिवर्स रिकवरी करंट है. रिवर्स रिकवरी करंट कब फ्लो होता है? जब हम थायरिस्टर को ऑफ कर रहे हैं तब. तो पहला वाला थायरिस्टर जल्दी ऑफ हो रहा है और बाकी सब थायरिस्टर बाद में ऑफ हो रहे हैं. ठीक है, और जब रिवर्स रिकवरी करंट होता है तो सप्लाई को रिवर्स करना पड़ता है पोलैरिटी, तभी हम थायरिस्टर को ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने पोलैरिटी को उल्टा किया है, वीएस को. ओके, नाउ द कैलकुलेशन पार्ट. जैसे हम लोग 2 के लिए डिस्कस किए थे, अभी n के लिए डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so let us assume let V1 स्क्रीन ऐसा क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है. अब ठीक हुआ. नाउ लेट अस अज्यूम V1 इज इक्वल टू VBM, जैसे हम लोग पहले अज्यूम किए थे. दिस इज जस्ट एन अज्यूमशन इक्वेशन. जो भी है, मैं कंटिन्यूशन करने से कौन सा इक्वेशन होगा अभिषेक?
5, I think. 5. Okay. Okay. Now let us name it as 5. Okay. V1 is equal to, we are assuming if V1 matlab voltage across first thyristor, V1 matlab voltage across first thyristor, if you are assuming VBM, एक symbol ले रहे VBM, तो V2 के across कितना होगा? Means voltage across second thyristor we will be equal will be taking as VBM जैसे पहले केस में लिए थे माइनस डेल्टा क्यू बाई सी, सेम कंडीशन ऐसे लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग पहले किए थे, सेम डिस्कशन। बिकॉज दोनों के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एनोड करंट एंड टाइम, एरिया अंडर द कर्व वाज डेल्टा क्यू, तो ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है बिटवीन देम। सो बट देयर आर एन नंबर ऑफ थायरिस्टर वी आर कंसिडरिंग। इस जो डायग्राम में हम लोग डिस्कस किए थे, देयर आर एन नंबर्स ऑफ थायरिस्टर्स, एन नंबर्स ऑफ एसीआर्स आर देयर। तो अगर ऐसे लेंगे तो V2 का भी वही होगा जो इक्वेशन 6 में लिए, V3 का भी इक्वेशन नंबर 6, V4 लाइक दिस अप टू n। ओके, सो एक थायरिस्टर को छोड़ के बाकी कितना थायरिस्टर बच रहा है? n-1। सो रेस्ट, क्योंकि एक तो पहले टर्न ऑफ हो जा रहा है, तो रेस्ट कितना बच रहा है? n-1। सो n-1 नंबर ऑफ थायरिस्टर जो अभी भी टर्न ऑन है, ठीक है, अभी भी टर्न ऑन है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? So write down voltage across रेस्ट थायरिस्टर, मतलब n-1। n-1 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि n में से एक थायरिस्टर ऑफ हो गया, ठीक है, तो बाकी कितना बचा? n-1। n-1 नंबर्स ऑफ थायरिस्टर्स और एसियर्स, ये कितना होगा? ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू n-1 n-1 इंटू V2। देखो V2 के लिए इक्वेशन नंबर 6 देखो, V2 का ये हुआ, V3 का भी सेम होगा इक्वेशन नंबर 6, V4 का भी होगा, तो n-1 मल्टीप्लाइड विथ V2, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? n-1 into V2. So now what is V2? Now let us substitute in equation in this present equation, let us substitute equation number 6. So now substituting, it will be equal to V2 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ओके, सो कंटिन्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इट विल बी n-1 VBM minus delta Q by C, इक्वेशन नंबर 7। अब Vs क्या होगा? Vs मतलब स्ट्रिंग वोल्टेज। स्ट्रिंग वोल्टेज क्या होगा? स्ट्रिंग वोल्टेज इज इक्वल टू V1 पहला वाला वोल्टेज प्लस द रेस्ट ऑफ द वोल्टेज n-1 इंटू VBM माइनस डेल्टा Q बाई, ये Q है, ओके, डेल्टा Q बाई C। इक्वेशन नंबर 6, सॉरी, इक्वेशन नंबर 5 प्लस 7 will be equal to Vs मतलब स्ट्रिंग वोल्टेज। नाउ V1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, V1 को वी कैन राइट VBM, ठीक है। सो दिस वी हैव टू सॉल्व ऑन सिंप्लीफिकेशन, VBM ऑन सॉल्विंग, हाँ, VBM will be equal to 1 by n Vs ऐसा आएगा VBM। Okay, now from this equation, this is the equation for VBM, matlab V1, and from this also we can find capacitor का equation also we can get it, capacitor का value क्या होना चाहिए, okay। Now from this also we can solve for capacitor, value of capacitor, which is giving us n-1 delta Q
ऐसा आएगा फाइनली इक्वेशन नंबर 8। अगर हो सके तो इसको याद कर लेना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कैपेसिटर का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को ये जो वीबीएम मिला ना, इसको भी लिखने से अच्छा होता है। इसको 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं लिख रही हूँ। ये जो आया ना, इसको ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू योर V1। लेट अस मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 8 एंड लेट इट बी 9। ठीक है, वीबीएम इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 8, दैट इज V1। ठीक है, V1 को हमने अज्यूम किया था ना, वीबीएम, दैट इज वाई। ओके, V2 क्या होगा? V2, now next let us find out V2. Now V2 according to equation number 6, V2 is equal to VBM minus delta Q by C, isn't it? तो यहाँ पे हम लोग को ये सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 8 को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, so on substituting equation number 8 and then solving a bit, putting equation number 8 in place of VBM. Okay, so substituting equation number 8 in place of VBM and then solving, it is coming finally Vs minus delta Q by C, ऐसा आ रहा है इक्वेशन नंबर 10। So in this case now it is clear कि if you have got n number of thyristor and any one of the thyristor is getting turned off sooner, then all the capacitor values should be equal, huh? So all the capacitor values should which should be connected across each thyristor, वो इक्वेशन नंबर 9 से हम लोग को मिल रहा है कैपेसिटर का वैल्यू। ओके, so one thing is for sure, what is that is the total final conclusion of this topic, is that though we are taking same rating and same specification of thyristor which we will be connecting in a series combination, but still their VI characteristic is not cannot be same also. If the VI characteristic is not same, obviously there will be in difference in the turn on and turn off characteristics. So that is why we should judiciously find out the value of capacitor which is given by this equation number 9. ठीक है, तो इफ अगर हम लोग ऐसा कैपेसिटर लगाते हैं इस वैल्यू का, देन द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट। ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम था? स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो लेस देन 1 हो रहा था उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, so this complete series operation of thyristor. Now we are moving to parallel operation. कुछ doubt है तो पूछ सकते हो। Anyone having any doubt? Okay, now next topic is parallel operation. Parallel operation of thyristor. तो why are we studying this parallel operation? अनीशा बताओ, पैरेलल ऑपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? हेलो, सो गई क्या? हेलो,
जाग रही हो, अच्छा। मैंने पूछा पैरेलल ऑपरेशन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दिव्या। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना? अभिषेक बताओ तो। हायर अमाउंट ऑफ करंट, हाँ, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन में वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो अगर जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेम्बर, एक इसका एक थायरिस्टर का, हाँ। हाँ, कुछ बोल रही हो? हाँ। हाँ, आ रही है। आंसर बोलोगी? नेट स्लो हो गया? मुझे तो आ रही है आवाज। तुम देख पा रही हो, स्क्रीन देख पा रही हो? हाँ। अ, हाँ, so in yesterday's class we have discussed कि one thyristor, the rating of one thyristor is 10 kV and 3 किलो एम्प। एक थायरिस्टर का रेटिंग 10 किलो वोल्ट, ये याद रखना है, ठीक है? एमसीक्यू 1 मार्क्स आ सकता है। 10 kV and 3 kilo amps, it is a rating of a single thyristor. But suppose for certain industrial application you need to have high voltage, high voltage or high current. For that purpose you need to study, or you need to understand the series operation and parallel operation. तो series operation में क्या हो रहा है? series operation में we meet the high voltage demand, ठीक है, and in parallel operation we meet the high current demand। ठीक है, हाई करंट कैसे? क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होगा, करंट जो है वो बढ़ते जाएगा, जितना हम यूनिट कनेक्ट करेंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। ठीक है, so we are studying parallel operation because because of the need of high current demand। ठीक है, तो हम लोग ये जो पैरेलल ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? टू मीट द हाई करंट डिमांड, to so that we will be able to meet the high current demand of certain industrial applications। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है जिसमें हाई करंट लगेगा, तो यहाँ पे देखो एक यूनिट का कितना करंट है, 3 किलो एम्प्स है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा चाहिए तो हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन करके वो डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस स्टडी द सर्किट डायग्राम फर्स्ट, पैरेलल ऑपरेशन कैसे हो रहा है। अंडरस्टूड ना दिस टाइम? क्यों पढ़ रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन?
Okay. Circuit over. हेलो, सर्किट हुआ. Okay, so we are taking two thyristor T1 and T2. Now for present situation we are connecting them in parallel. ठीक है, तो let us assume कि T1 is carrying a current I1, T2 is carrying a current I2, and sum of current which is flowing through the string is your I. I is equal to I1 plus I2. Okay. Now, one thing you should always keep in mind that for forward conduction, मतलब जब टर्निंग ऑन हो रहा है, फॉरवर्ड कंडक्शन जब हो रहा है, तब जितने भी थायरिस्टर हैं सबका सेम वी आई कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके. ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि सबका वी आई कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा. सो इट शुड बी ऑलवेज फॉर फॉरवर्ड कंडक्शन. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड कंडक्शन मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में व्हेन द थायरिस्टर्स गेटिंग देन थायरिस्टर्स आर गेटिंग टर्न्ड ऑन, जितना भी थायरिस्टर्स है, जैसे यहाँ पे T1 T2 है, इस केस में T1 T2 है, अगर n नंबर्स है तो सारा थायरिस्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे शुड हैव सेम वी आई कैरेक्टरिस्टिक. ये पॉसिबल नहीं होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक सेम होना, सेम रेटिंग और सेम स्पेसिफिकेशन का होते हुए भी, बट शुड हैव सेम वी आई कैरेक्टरिस्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके. अच्छा, नाउ व्हाट इज वीटी. वीटी मैंने डायग्राम में दिखाया ना, वो छूट गया. वीटी इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस T1 एज वेल एज T2, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है. सो वीटी इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बोथ द थायरिस्टर T1 एंड T2. ओके. तो अगर हम लोग यहाँ पे अच्छा ना, यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था अभिषेक, याद है? जो हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं सेम, स्ट्रिंग एफिशिएंसी. हाँ, न्यूमरेटर में है एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ वन यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, जितना यूनिट्स कनेक्टेड है. तो यहाँ पे हमारा कितना है टोटल करंट रेटिंग, क्या होगा न्यूमरेटर में, हम लोग करंट के हिसाब से निकाल रहे हैं. हाँ, बिकॉज वी टी से I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ वन थायरिस्टर. सो सपोज हम लोग यहाँ पे I1 को लेते हैं, ठीक है, वन थायरिस्टर I1 को लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ थायरिस्टर, सो 2. सो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग I1 ले रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि I1 इज इक्वल टू योर I2. ठीक है, जैसे फॉर्मूला में कहते हैं कि एक्चुअल, डिनोमिनेटर में बात कर रही हूँ, एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ वन थायरिस्टर. तो यहाँ पे मैंने I1 लिया, तो ज़रूरी नहीं I1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द थायरिस्टर रेटिंग ऑल्सो. सो इट मे ऑल्सो हैपन कि हम लोग I1 ले रहे हैं, बट I1 जो है वो I2 से कम है, या I1 जो है I2 से ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला में I1 लिया है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली दैट I1 I1 इज इक्वल टू योर I2. ऐसा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि I1 इज स्मॉलर देन I2 एंड और I1 इज ग्रेटर देन I2. ओके, नाउ वी आर, दिस वाज द इंट्रो. ओके, नाउ वी विल बी टेकिंग डिफरेंट केसेस एंड विल एनालाइज कि पैरेलल ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे. ओके, सो केस 1 फॉर दिस.
Okay, so for case 1, we are considering n number of thyristors connected in parallel. ओके, सो सपोज एन नंबर ऑफ थायरिस्टर्स, इस पे थोड़ा समझना है बस। हाँ, सपोज जैसे हम लोगों ने अभी 2 थायरिस्टर लिया, तो इसके हेल्प से समझाती हूँ। सपोज वी हैव गॉट 2 थायरिस्टर। ओके, तो हम लोगों ने सेम वी आई कैरेक्टरिस्टिक लिया, बट ऐसा हो सकता है कि उसका जो टर्न ऑन टाइम है, एक थायरिस्टर का जो टर्न ऑन टाइम है और दूसरा थायरिस्टर का जो टर्न ऑन टाइम है वो अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग हो मतलब अलग अलग हो मतलब एक पहले टर्न ऑन हो रहा है, सपोज T1 जो है वो बाद में टर्न ऑन हो रहा है और T2 जो है पहले टर्न ऑन हो जा रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ टर्न ऑन नहीं हो रहे, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उस पर जस्ट फोकस करो। समझ लो T1 बाद में टर्न ऑन हो रहा है, T2 पहले टर्न ऑन हो रहा है। तो जब तक T1 टर्न ऑन नहीं हो रहा है, फॉर द टाइम व्हेन द T1 इज नॉट गेटिंग टर्न ऑन, तो T2 तो टर्न ऑन है, तो सारा जो लोड है वो T2 के ऊपर आ रहा है ना, इजंट इट? जो भी लोड, कुछ ना कुछ तो लोड कनेक्टेड होगा ना, तो सारा लोड जो है वो T2 को विथस्टैंड करना पड़ रहा है, तो T2 इज गेटिंग ओवरलोडेड। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है जब तक T1 इज गेटिंग टर्न्ड ऑन, between the instant when T2 is on, but there is a gap between the time when the T1 is going to be turned on. So between that fraction of time, fraction of second, you can say that T2 is getting overloaded, and it can get damaged because of heating which may be due to the overcurrent. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अभी जो हम लोगों ने डायग्राम किया था, फिर से एक बार समझाती हूँ। T1 है, ओके, T2 है। तो T1 जो है ये पहले ऑन नहीं हो रहा है, T2 इज गेटिंग टर्न ऑन फास्टर। ठीक है, T1 को थोड़ा टाइम लग रहा है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, बिकॉज T1 इज स्टिल ऑफ, T1 ऑन होगा बट थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उस इंटरवल में T2 के ऊपर सारा लोड आ रहा है, इजंट इट? तो T2 इज गेटिंग ओवरलोड हो रहा है, और एक्स्ट्रा करंट जो कि I2 फ्लो होना चाहिए था, अभी I2 के साथ कुछ एक्स्ट्रा करंट भी फ्लो हो रहा है, एडिशनल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, I2 के साथ कुछ एडिशनल करंट फ्लो हो रहा है। सो ओवर करंट के लिए उसका हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है, हीटिंग के लिए वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। ठीक है, सो ये डैमेज होने से क्या होगा, तुम्हारा T2 जो होगा ये इट कैन, ड्यू टू ओवरलोडिंग कंडीशन इट मे गेट डैमेज। ठीक है, सो द सर्किट विल बी डिस्टर्ब ना, अगर ऐसा सिचुएशन हो। तो इसलिए कोशिश करना है कि जितना भी थायरिस्टर लेंगे सबका टर्न ऑन टाइम मोर और लेस सेम होना चाहिए, अदरवाइज दिस हीटिंग प्रॉब्लम, ओवरलोड कंडीशन में अराइज। तो ऐसे ही अगर हम लोग n नंबर ऑफ थायरिस्टर लेते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ थायरिस्टर, n कैन हैव एनी नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने n2 लिया, तो n नंबर ऑफ थायरिस्टर लेते हैं, उसमें से एक थायरिस्टर सारा टर्न ऑन हो रहा है, एक थायरिस्टर बाद में टर्न ऑन हो रहा है, तो बाकी थायरिस्टर्स पे ओवरलोडिंग होगा। ठीक है, ओवर करंट फ्लो होगा, ओवर करंट से क्या होगा, हीटिंग होगा, हीटिंग से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहला थायरिस्टर जब तक टर्न ऑन हो रहा है बाकी का बाकी डैमेज होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वाई इन केस 1 व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि शेयरिंग जो है इक्वली होना चाहिए करंट का, तो उसके लिए वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि टर्न ऑन टाइम जो है, टर्न ऑन टाइम ऑफ ऑल थायरिस्टर शुड बी सेम, अदरवाइज दिस प्रॉब्लम में अराइज। ठीक है, तो अगर हम n number of thyristor we are choosing and we are connecting in parallel, so all the n number of thyristors should have the same turn on time, otherwise this kind of situation may arise. ठीक है, समझ में आया केस 1? हेलो, ठीक है, तो टर्न ऑन टाइम सेम होना चाहिए। नाउ केस 2, नेक्स्ट। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केस 2।
नोट कर लिया ये वाला? ओके, नाउ केस 2। टर्न ऑन टाइम होना चाहिए, मैंने टर्न ऑन लिखा है, टर्न ऑन टाइम। ओके, नाउ केस 2। केस 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज वी हैव गॉट टू थायरिस्टर्स कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। एंड हम लोग डिस्कस किए थे करंट I1 है, I2 है, ठीक है, एंड मेन करंट इज I। सपोज फॉर इंस्टेंस वी आर अज्यूमिंग लेट I1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन I2 का वैल्यू, तो क्या प्रॉब्लम होगा? पहले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टर्न ऑन टाइम डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या प्रॉब्लम होगा। हाँ, नाउ इन केस 2 वी आर अज्यूमिंग कि इफ say two thyristors are connected, T1 and T2 are connected in parallel, okay, they have got the same voltage between them, that is VT, but say your I1, ऐसा हो सकता है कि I1 is greater than your I2, दोनों अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। तो सपोज I1 is greater than I2, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द केस 2 इज। समझ में आ रहा है केस 2 हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, अगर ऐसा होता है तो I1 जो है I1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन I2, सो व्हेन द I1 इज फ्लोइंग थ्रू T1, ठीक है, थ्रू T1 व्हेन इट इज फ्लोइंग, it will increase its dynamic, it will decrease its dynamic resistance। dynamic resistance क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि तुम्हारा जो जंक्शन टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, जंक्शन टेम्परेचर विल राइज ऑफ द T1। जंक्शन है ना, हम लोग डिस्कस किए थे, यू नो कि थायरिस्टर में थायरिस्टर इज अ 4 लेयर and 3 junction PNPN semiconductor device. So there are 3 junctions, J1, J2, J3, and so when I1 is greater than I2, तो I1 जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो J1, J2, J3 का जंक्शन टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जंक्शन टेम्परेचर राइज होने से डायनेमिक रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। नाउ व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस is equal to your rate of change of thyristor voltage with respect to anode current, okay, because you know that resistance is inversely proportional to current ना, ऐसे भी समझ सकते हो, resistance is inversely proportional to current, so if current is more, so dynamic, this is called dynamic resistance of thyristor T1, so dynamic resistance will decrease, ठीक है। resistance decrease हो रहा है, इसका क्या मतलब अभिषेक, क्या होगा नेक्स्ट? T1 का डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, सो अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? हाँ, इससे क्या होगा, और करंट बढ़ेगा, मतलब I1 जो पहले फ्लो हो रहा था, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो क्या होगा, करंट, और जो जितना करंट पहले जा रहा था अब उससे ज़्यादा करंट जाएगा, तो I1 का जो वैल्यू है, I1 का जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगा, जितना था और बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस हैज़ डिक्रीज्ड। फिर अगर I1 का करंट अगर और बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम हो जाएगा, इजंट इट? जितना कम था उससे और कम होगा, सो इट्स अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ऐसे होते होते एक टाइम आएगा, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब क्यूमुलेटिव का मतलब आई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड विथ योर करंट I1, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ उससे और करंट बढ़ा, उससे करंट अगर और बढ़ा तो रेजिस्टेंस और डिक्रीज हुआ, तो अगर ऐसा होते रहा एक टाइम आएगा कि जंक्शन टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट थायरिस्टर, इसका जो जंक्शन टेम्परेचर है फर्स्ट थायरिस्टर, ये जंक्शन टेम्परेचर जो रेटेड वैल्यू होता है लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट थायरिस्टर जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट थायरिस्टर में गेट डैमेज और परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है,
ठीक है। तो इसीलिए जब पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है तो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि दे शुड ऑपरेट एट द सेम टेम्परेचर एंड उसको पैरेलल में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कॉमन हीट सिंक यूज करना चाहिए। अच्छा, पहले मेरे को ये चीज बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। करंट I1 का फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, I1 इज ग्रेटर देन I2, वी हैव जस्ट अज्यूम। सो I1 इज ग्रेटर, नाउ I1 इज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद करंट। अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस, पहले जितना रेजिस्टेंस था करंट को, अब वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो करंट विल अगेन इंक्रीज मोर बिकॉज रेजिस्टेंस हैज फॉलन डाउन। तो नाउ रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। ऐसे कम होते 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 एक टाइम आएगा कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और करंट जो है, I1 करंट जो है वो इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है। इन्फानाइट हो जाएगा मतलब एक्सेसिव हाई करंट, एक्सेसिव हाई करंट I1 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऑल द थ्री जंक्शंस J1 J2 J3 उसका टेम्परेचर राइज होगा एंड T1 विल अल्टीमेटली विल बी डैमेज, इट विल बी डिस्ट्रॉयड परमानेंटली। ठीक है। तो ये सिचुएशन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट इज द सोल्यूशन? ठीक है। केस 2 का सोल्यूशन हम लोग कैसे मिलेगा? फॉर दिस वी नीड टू ऑपरेट बोथ थायरिस्टर T1 एंड T2 एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? एनी आइडिया? T1 T2 को सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट करना पड़ेगा। वी नीड टू ऑपरेट, नाउ फाइनल कंक्लूजन फॉर केस 2। need to operate T1 and T2 at same temperature। सेम टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए फॉर दिस हम लोग, ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? फॉर दिस वी नीड टू माउंट MOU। हाँ, वी नीड टू माउंट, जैसे यहाँ पे मैंने 2 थायरिस्टर लिया है, ऐसे ज़्यादा भी थायरिस्टर्स हो सकता है। सो वी नीड टू माउंट ऑल SCRs ऑन common heat sink। heat sink, you know, heat sink एक कॉमन हीट, हाँ, जो ऑब्जर्व करेगा हीट को और वो एयर में उसको रेडिएट कर देगा। तो एक कॉमन हीट सिंक में सारा थायरिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सारे थायरिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। तो हीट सिंक देखे हो कभी? इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। तो समझ लो ऐसे है हीट सिंक। ठीक है। इस कॉमन हीट सिंक में फर्स्ट थायरिस्टर कनेक्टेड है, ये दिखा रहा है फर्स्ट थायरिस्टर, सेकेंड थायरिस्टर एंड थर्ड थायरिस्टर। ये जो ग्रीन में मैंने ड्रॉ किया ये हीट सिंक है HS। तो एक कॉमन हीट सिंक में सपोज 3 थायरिस्टर ले रहे हैं तो तीनों का तीनों कॉमन हीट सिंक में ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है। ये सेकेंड केस कहता है फाइनल कंक्लूजन, ताकि टेम्परेचर राइज ना हो एक पर्टिकुलर का, we need to connect all of the thyristor, mount, not connect, mount all the thyristors on a common heat sink। ठीक है। बट इससे भी एक प्रॉब्लम है, वो हम केस 3 में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये डायग्राम कर लेना। हाँ, HS माने हीट सिंक 1 2 3, सपोज 3 thyristors are there, so we are connecting 1 2 3 like this। so now what is the problem? टेम्परेचर तो कंट्रोल होना चाहिए बट नहीं होगा। what is the problem? Okay, so let us discuss in case 3। So in case 3, though we have connected
just now we have discussed that there should not be any temperature increase in one thyristor. We should connect all the thyristors, mount all thyristors on a common heat sink, but still there is some problem क्या है? Unequal, problem of unequal current distribution. देखो, हमने हीट सिंक लगा के टेम्परेचर को सेम रखने की कोशिश किया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम राइज होगा अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का. देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन. ये अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन आया कहाँ से? हाँ, नाउ सी इन द डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन, which I have drawn here in the below. You can see कि heat sink है, 3 thyristors are there, 1 2 3. ठीक है, तो 2 is situated in the middle. Suppose हम लोग ऐसे mount कर रहे हैं. Suppose we are mounting thyristor 1 2 and 3 like this. So thyristor 2 is lying between 1 and 3. तो क्या होगा, इससे ज़्यादा फ्लक्स जो है 1 से और 2 से ज़्यादा फ्लक्स जो है वो, सॉरी 1 से और 3 से ज़्यादा जो फ्लक्स है वो सेकंड पे ये हो रहा है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, इसका जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड थायरिस्टर, इट विल डिक्रीज. कैसे हो रहा है? नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मिडिल थायरिस्टर. अगर ऐसे कनेक्शन होता है देन द मिडिल कंडक्टर विल हैव मोर इंडक्टेंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, मतलब फर्स्ट से भी ज़्यादा फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स के फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से भी ज़्यादा फ्लक्स होगा तो ज़्यादा इंडक्टेंस होगा. ठीक है, और ज़्यादा इंडक्टेंस होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो मोर फ्लक्स इज देयर, दैट यू कैन अंडरस्टैंड ना. ज़्यादा फ्लक्स बिकॉज मिडिल में सिचुएटेड है, ज़्यादा फ्लक्स हो रहा है, सो दैट इज वाई मोर, मैं लिखती हूँ. हाँ, मोर फ्लक्स linkages टू T2. कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम T1, क्योंकि मिडिल में है तो T1 से भी इंटरलिंक हो रहा है और T3 से भी इंटरलिंक हो रहा है. सो मोर फ्लक्स लिंकेज मीन्स इट्स सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ T2, इट विल इंक्रीज, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा. अगर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑफ सेकेंड थायरिस्टर विल डिक्रीज. लेस करंट विल फ्लो थ्रू सेकेंड थायरिस्टर. वाई? बिकॉज ये वाला इक्वेशन पता है ना, V इज इक्वल टू L di/dt. सो इफ यू फाइंड आउट करंट, I इज इक्वल टू di का मैंने वो ले लिया इंटीग्रेशन V/L t. ठीक है, बाकी सबको अगर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ करंट और इंडक्टेंस को लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को इन्वर्सली रिलेटेड है. सो अगर सेल्फ इंडक्टेंस मेरा बढ़ रहा है तो करंट विल डिक्रीज. अप एरो मतलब इंक्रीज, डाउन एरो मीन्स डिक्रीज, इनवर्स रिलेटेड. सो self inductance is increasing because flux, more amount of flux linkage. ठीक है, so self inductance is increasing. If the self inductance is increasing, current through the middle thyristor मतलब T2 will be less in comparison with the other two thyristor, मतलब T1 and T3 की comparison में T2 जो है वो कम करंट कैरी करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, ये चीज़ प्रॉब्लम समझ में आया कि अगर हम लोग मिडिल में कनेक्ट करते हैं, ऐसे सीरियल वाइज कनेक्ट करते हैं 1 2 3, जैसे 3 मैंने समझाया, तो सेकंड वाले में ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है और ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज से ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एल विल बी हाई. एल विल बी हाई मीन्स उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जो उसको एक्चुअली में कैरी करना चाहिए था वो कम होगा. तो T1 एंड T3 ज़्यादा करंट ले रहे हैं कंपैरेटिवली, और T2 जो है उसमें से करंट कम जा रहा है, तो अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है, समझ में आया ये जो मैंने टॉपिक लिखा था, अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल अकर, बट इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हाउ टू अवॉइड दिस अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन?
ये जो अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट कैन बी अवॉइडेड. नाउ फाइनल कंक्लूजन फॉर केस 3. Unequal current distribution can be avoided mounting all SCRs on heat sink. HS short में लिख रही हूँ heat sink. सिमेट्रिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है. हाँ, जो अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा था, दैट कैन बी अवॉइडेड बाय माउंटिंग ऑल एसियर्स. There is no doubt we have to mount on heat sink, but we'll be mounting not one by one. We'll be mounting them symmetrically. Symmetrically का मतलब क्या है? Now I'll show one diagram so that will be clear to you. तो जैसे मेरा 3 था, ये लिखना हो गया. ओके, जैसे यहाँ पे 3 था, तो हम लोग उसको 1 2 3 ऐसे सेट कर रहे थे ना. सो इंस्टेड ऑफ माउंटिंग 1 2 3 सीरियल वाइज, वी हैव टू माउंट देम सिमेट्रिकली. सिमेट्रिकली का मतलब क्या है? दैट आई विल बी टेलिंग यू. सपोज हीट सिंक ऐसा है, सर्कुलर है, ठीक है. This is heat sink HS. So we will be putting all the conductors symmetrically like this, ताकि उन दोनों इन तीनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो सिमेट्रिकल डिस्टेंस होगा. ये अभी भी इतना सिमेट्रिकल लग नहीं रहा है, ठीक है. एक्चुअली में थोड़ा बनाने में डिफरेंस हुआ. अभी थोड़ा ठीक लग रहा है. सो वी विल हैव टू माउंट ऑल द 3 थायरिस्टर्स लाइक द सिमेट्रिकली. इस तरह से सिमेट्रिकली अरेंज करेंगे तो क्या होगा, किसी एक थायरिस्टर पे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा. फ्लक्स लिंकेज विल बी इक्वल. अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, करंट वो लोग जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उन लोग के बीच में वो नहीं होगा, वो अवॉइड हो जाएगा. ठीक है. सो केस 3 इज ओवर. नाउ केस 4 लास्ट. डायग्राम कर लिया ना ये वाला, सिमेट्रिकली कैसे प्लेस करेंगे. नाउ द लास्ट केस, दैट इज केस 4. अच्छा, केस 4 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग सिमेट्रिक इक्वल कर लेंगे बाय माउंटिंग ऑल द थायरिस्टर्स सिमेट्रिकली ऑन अ हीट सिंक. हाँ, बट इसके अलावा भी और क्या किया जा सकता है. इसके अलावा हम लोग यूनिफॉर्म करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक कपलिंग करेंगे. ठीक है. सो केस 4 हियर वी आर स्टडिंग कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड मोर यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म तो उसमें से होगा, बट और यूनिफॉर्म, मोर यूनिफॉर्म. ठीक है, अंडरलाइन. कैन बी मेड मोर यूनिफॉर्म बाय magnetic coupling of the parallel paths. इसका मतलब पैरेलल है, पैरेलल पाथ्स.
ठीक है, now what is the meaning of this line will try to understand with the help of diagram, circuit diagram. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया. Okay, now a small circuit diagram. इसमें बस एक्सप्लेनेशन ही है और कुछ नहीं है. तो सपोज हम लोग दो थायरिस्टर ले रहे हैं. मैग्नेटिक कपलिंग क्या है? सपोज वी आर टेकिंग टू थायरिस्टर T1 T2. इनके बीच का वोल्टेज जो है इट इज VT. डायग्राम कर लो पहले. यहाँ पे देखो बीच वाला जो पॉइंट है उसको मैंने A लिखा है. एंड ये जो है मैंने कॉइल बनाया, दिस इज अ रिएक्टर. इंडक्टर है उसको रिएक्टर कह रहे हैं. ओके, डायग्राम होगा. ओके, सो सपोज इसमें हम लोग पहले स्टडी करते हैं कि I1 अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 है तो क्या होता है. हाँ, उसके पहले थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो इन दिस डायग्राम वी आर टेकिंग टू थायरिस्टर्स T1 and T2, both are connected in parallel. I is the main current through both the thyristors are I1 and I2 respectively, and VT is the voltage drop between T1 and T2 which is same. Okay, now इसमें हम लोग जस्ट इसके पहले वाले केस में वी हैव स्टडीड कि अनइक्वल वोल्टेज को इक्वल करने के लिए वी हैव टू माउंट ऑल द थायरिस्टर्स सिमेट्रिकली ऑन अ हीट सिंक, कॉमन हीट सिंक. नाउ इसके अलावा वन मोर थिंग वी कैन मॉडिफाई इन द सर्किट इज दैट, और वी कैन डू अ एडिशनल थिंग इन आवर सर्किट इज दैट वी हैव टू कनेक्ट वन रिएक्टर. रिएक्टर मतलब इंडक्टर, इंडक्टर को रिएक्टर कह रहा है. सो उसका जो 50% पार्ट है वो इस तरफ कनेक्टेड होगा, 50% पार्ट उस तरफ कनेक्टेड होगा. पॉइंट ए जो मिडिल में मैंने एक पॉइंट ए दिखाया दैट इज अ मिड पॉइंट विच हैज टू बी टेकन आउटसाइड. ठीक है, एंड इसका जो 50% जो पार्ट है जो विच इज कनेक्टेड विद थायरिस्टर 1, वी आर नेमिंग इट एज L1, एंड रेस्ट 50% पार्ट विच इज कनेक्टेड विद थायरिस्टर 2 वी आर नेमिंग इट एज L2. Okay, L1 and L2. Okay, now that was the circuit explanation. Now let us consider a case. First situation, that is I1 is equal to I2. अगर I1 is equal to I2 होता है तो I1 जब current I1 is flowing through L1,
ओके, द मोमेंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू L1, जो उसका फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज जो प्रोड्यूस होगा, से I1 के लिए प्रोड्यूस हुआ phi 1, ठीक है, और phi 2 के लिए प्रोड्यूस हुआ phi 2, I2 के लिए प्रोड्यूस हुआ phi 2, तो दोनों क्या सेम होगा? Flux linkage phi 1 is produced by L1 when the current is flowing through this. ऐसे flux linkage produce होता है ना, ऐसे ऐसे produce होगा, ठीक है। तो phi 1 I1 अगर is equal to I2 है, तो phi 1 क्या equal to phi 2 होगा? When I2 is flowing through L2, it is flowing a flux linkage. Obviously both will be equal, ठीक है, बिकॉज करंट का वैल्यू सेम है और ये मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो हाफ पॉइंट है, मतलब हाफ इंडक्टर इधर है, हाफ इंडक्टर उधर है। सो ऑब्वियसली व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, बोथ द फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, नॉट लिंकेज, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय L1 एंड L2 विल बी सेम। अगर दोनों साइड से सेम है तो दे विल कैंसल आउट, क्योंकि इसका पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी कैसे है, पोलैरिटी ऐसा है कि दोनों कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो phi 1 विल बी कैंसल्ड बाय phi 2, phi 1 will be cancelled by phi 2, both will be cancelled out. So if both are cancelling out, so no voltage drop will occur in the inductor, inductor में कोई voltage drop नहीं होगा, okay, इंडक्टर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज phi 1 विल बी कैंसल्ड बाय phi 2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि phi 1 phi 2 वैल्यू तो सेम है, बट पोलैरिटी ऑफ L1 एंड L2, इफ यू कीप अ वॉच, दोनों phi 1 एंड phi 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो अगर कैंसिल कर रहे हैं, सो नेट वोल्टेज विच इज जनरेटेड इन द रिएक्टर विल बी इक्वल टू 0, नेट वोल्टेज ड्रॉप इन द रिएक्टर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, अगर I1 इज इक्वल टू I2 हुआ। Okay, now let us take the situation when I1 is not equal to I2. Okay, ये चीज समझ में आया? Okay, so let us take another situation when I1 is greater than I2. ऐसा हो ही सकता है कि I1 greater है I2 से, तो क्या होगा? So let I1 is greater than I2. तो अगर I1 greater than I2 है, तो I1 का जो फ्लक्स होगा, when I1 is flowing through L1, flux is say phi 1, and when I2 is flowing through L2, flux is suppose phi 2. तो phi 1 is greater than phi 2 होगा obviously, ठीक है। So there will be difference of, if phi 1 is greater than phi 2, obviously there will be difference of voltage generated ना, E is equal to N d phi by dt. Induced voltage is directly proportional to the flux linkage. If flux is more induced voltage will be there. तो किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? E1 मतलब फर्स्ट इंडक्टर will be more than E2. So there is a difference of voltage will be produced, ठीक है, क्योंकि phi 1 is greater than phi 2. So E1 will be greater than, E1 मतलब voltage induced in L1, and E2 मतलब voltage induced in L2। अगर E1 greater than E2 होगा, ठीक है, EMF across first thyristor, but here the if you see the polarity, first thyristor will E1 जो generate हो रहा है, that will oppose the flow of I1, ठीक है। देखो E1 greater than E2 हो रहा है, बट E1 जो है इसका पोलैरिटी अगर देखते हो, लुक एट द पोलैरिटी ऑफ L1, इसका पोलैरिटी ऐसा है कि इट विल अपोज द फ्लो ऑफ I1, whereas E2 जो है it will what to say, it will add the flow of I2, ठीक है, समझ में आ रहा है अभिषेक? देखो E1 is greater than E2 हो रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ E1 will oppose the flow of I1, क्योंकि I1 ग्रेटर है, उसको अपोज कर रहा है ताकि I1 का वैल्यू कम हो जाए, और E2 जो है वो ऐड करेगा, ऐड द वैल्यू ऑफ I2, ठीक है, ऐड द वैल्यू ऑफ I2 मतलब I2 जो कम था उसको इक्वलाइज करेगा। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा,
है नहीं स्टार्टिंग में, बट हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2। तो इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज पॉसिबल। ये E1 जो है ये I1 को रिड्यूस करेगा, ठीक है, एंड दिस E2 विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ I2। तो एक टाइम आएगा जब बैलेंसिंग होगा कि I1 विल बी इक्वल टू I1 विल बी मेड इक्वल विथ I2, ठीक है, I1 will be reduced and I2 will be increased, so a condition will come where I1 will be balanced with I2, ठीक है। तो इस ये जो सर्किट है, तो हम लोग फाइनली क्या समझे, नाउ व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, ये समझ में आया वर्किंग रिएक्टर लगा के। अगर इक्वल हुआ तो नो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, अगर अनइक्वल होगा तो जिस साइड में ज्यादा है उसको जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है अक्रॉस द रिएक्टर इट विल अपोज, इट विल रिड्यूस डाउन इट्स वैल्यू, और जिस साइड में कम है इट विल ऐड। तो इस तरह से करंट इक्वलाइजेशन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? सो फाइनल कंक्लूजन है कि for proper parallel operation of thyristor, one thing is that all thyristors should be symmetrically mm, all thyristors should be symmetrically placed in heat sink। HS मतलब heat sink, okay, हीट सिंक में सबको सिमेट्रिकली प्लेस करना है। एंड नंबर 2 इज दैट मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ अच्छा, so first point is that all thyristors should be symmetrically placed or mounted in heat sink, on heat sink होगा, हाँ, on heat sink। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि करंट को इक्वल किया जा सकता है, इट कैन बी मेड more equal by using magnetic coupling of parallel paths। Magnetic coupling of parallel paths means you have to use a reactor like this, which just now we have understood, ठीक है। So if you are doing two things then better parallel operation can be achieved, otherwise there will be problem which we have discussed in our case 1 and case 2, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आएगा तो थायरिस्टर विल मेक अ डैमेज ऑल्सो। केस 1 में हम लोग डिस्कस किए ओवरलोडिंग हो जाएगा, और केस 2 में हम लोग डिस्कस किए कि एक थायरिस्टर दूसरे थायरिस्टर से अगर उसका वैल्यू करंट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, उस जो जिसमें ज़्यादा है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये दो चीज़ से हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं, फर्स्ट टू केसेस का प्रॉब्लम, ठीक है, इन केस 3। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अनीशा क्लियर हुआ? अभिषेक कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो। ये वाला वर्किंग समझ में है ना, ये जो ये मैग्नेटिक कपलिंग वाला क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? और एक बार स्टडी करना, समझ में आ जाएगा। अनीशा कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो, अनीशा नहीं है क्या? शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, बाय बाय अभिषेक देन। अच्छा अभिषेक, एक मिनट,